الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والصولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغیبت الالہ القائم بامر اللہ. بلندتر صلوات پڑھیے گا. جیسا کہ کل کی مجلس میں جو مومنات آئی تھیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ خدا نے جو نظام ہم تک پہنچایا ہے وہ الہی نظام، اگر ہم نے اس کو نہیں مانا تو ہم شیطان کی طرح ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان نے خدا کے فرمان کو ٹھکرایا تھا. شیطان نے وہ اصل سجدہ کہ جو امر الہی کو کرنا تھا، یعنی خدا کے حکم کو ماننا تھا، وہ اس نے نہیں مانا. شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ شیطان نے یہ کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. اس کو اپنی عبادتوں پہ ناز تھا، سالہ سال اس نے عبادتیں کی، لیکن اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ کہتا تھا میں آپ کا بنا ہوا ہوں اور یہ خاک کا بنا ہوا ہے. اس نے تکبر کیا، یعنی اس کے اندر اپنی میں آ گئی. ایک انا جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اس انا کو مارنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی انا انسان کو خدا کی بارگاہ سے نکال دیتی ہے. اگر ہم لوگوں کے اندر اپنی انائیں ہیں موجود، ہر طبقے کے اندر کچھ نہ کچھ انا ہوتی ہے. سب سے پہلے جو علماء کرام ہیں ان میں بھی ایک انا ہوتی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا عموماً لوگوں کو برا لگتا ہے کہ مجھے پہلے کیوں پڑھا دیا، اس کو بعد میں کیوں پڑھا دیا. اسی طرح اگر آپ کی کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص اگر آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے، وہ اگر آپ سے چھین لی جائے تو عموماً انسان کی انا بیچ میں آ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی انا میں پھنس جاؤں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ سے آپ کی نارمل روٹین سے ہٹ کر کچھ کہہ دے تو آپ کو برا لگنا شروع ہو جائے. ایک بہت جید عالم دین ہے کہ جن کا نام ہے ملا احمد عراقی، بہت مشہور ہیں. جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں یا جن کو علماء جو پرانے علماء ہیں جن کو ان کے بارے میں پتا ہوگا وہ جانتے ہوں گے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جامعہ سادات کے نام سے، اور ان کے جو بیٹے ہیں مہدی عراقی انہوں نے اس کا خلاصہ کیا ہے معراج السعادہ. بہت مشہور کتاب ہے، قرآنی کتاب ہے، اخلاق کے حوالے سے کتاب ہے. یعنی اگر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا جس کو گناہان کبیرہ کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو وہ گناہان کبیرہ کتاب پڑھے، اور جس کو جو چاہ رہا ہے کہ میرے اندر خلوص آئے، میرے اندر اخلاص پیدا ہو، میرے اندر جو اخلاق ہے میرا وہ بہترین ہو جائے، تو اس کتاب میں یہ چیزیں موجود ہے. کتاب کا نام ہے معراج السعادہ. جنہوں نے لکھی، جب انہوں نے لکھی تھی کیونکہ یہ ایران میں رہتے تھے، اور ان کی کتاب جب حوزہ علمیہ نجف میں یعنی عراق میں گئی تو وہاں پر جتنے بھی علماء کرام تھے انہوں نے اس کو بہت سراہا اور بہت تعریف کی کہ بہترین کتاب ہے. اتفاق سے کہ خدا نے ان کو وہ موقع دیا کہ یہ زیارت کربلا کے لیے جائیں. ان کو پہلے نجف میں جانا تھا، پھر باقی زیارات کرنی تھی. یہ جب وہاں گئے تو روایات بیان کرتی ہیں کہ جتنے بھی علماء تھے، کیونکہ نجف میں پورا حوزہ ہے، تو جتنے بھی علماء جتنے بھی شاگردین تھے وہ سب ان سے ملنے آئے سوائے ایک عالم دین کے. وہ خود ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے جو ملنے نہیں آئے تھے، لیکن بہرحال وہ کیونکہ سید تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو وہ نہیں آ رہے تو میں ان سے جا کر مل لیتا ہوں. حتیٰ کہ اب یہاں پر انا آ سکتی تھی کہ بھئی میں یہاں مہمان آیا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ سادات ہیں، میں ان سے خود ملنے جاؤں گا. لیکن اب ارد گرد والوں نے ان کو اکسانا شروع کیا کہ آغا آپ یہاں مہمان بن کر آئے ہیں، زیب نہیں دیتا کہ آپ جائیں. انہوں نے کہا نہیں. یہ اٹھے اور ان کا درس تھا مولا کے حرم میں، اور انہوں نے وہاں پہ شرکت کی. انہوں نے درس دی، اور وہ جو عالم دین ہے ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ ہے سید مہدی بحر العلوم. بہت ہی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین اپنے زمانے کے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نارمل درس دیا اور وہ اٹھ کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، یہ نہیں مل سکے. پھر کچھ عرصہ دوبارہ انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ چکر لگایا، تب بھی ایسا ہوا کہ جو سید مہدی بحر العلوم ہے وہ آئے، انہوں نے درس دیا اور پھر دوبارہ چلے گئے، ملاقات پھر بھی نہ ہوئی. اب اس کے بعد ان کو کیونکہ باقی زیارات کے لیے جانا تھا، کربلا، سامرہ، کاظمین، خداوند متعال ہم سب کو ان جگہوں پہ بلائے. جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بھی نجف جاتا ہے وہ پھر کربلا بھی جاتا ہے، سامرہ بھی جاتا ہے، کاظمین بھی جاتا ہے. تو یہ ادھر گئے زیارات کرنے، اور جب زیارت سے واپس آئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ
अब 2 दिनों में मैं वापस अपने शहर, अपने मुल्क ईरान चला जाऊंगा। तो इन्होंने फिर इरादा बनाया, फिर लोगों ने इनको समझाया कि आगा अब तो हो गई, अब 2 दफा आपने कोशिश कर ली। इन्होंने कहा नहीं, मैं अब इस दफा जाती तौर पर उनके घर तशरीफ लेके जाऊंगा। अजीजान, जब इन्होंने ये चीज सोची कि मैं इनके घर जाऊंगा, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ सैयद मेहदी बहरुल उलूम का कि सैयद मेहदी के लिए उलमा ये फरमाते हैं कि वो इस पाए के आलम दीन है कि उलमा ने बाकायदा एक नहीं कई उलमा ने उनको आलम बरज़ख में इमाम अली अलैहिस्सलाम के दर पर खादिम के तौर पर देखा है। ये वो आलिम दीन है कि क्योंकि अपने जमाने में जब ये तालिब इल्म के जमाने में थे तो ये इतने ज्यादा ज़हीन नहीं थे, तो इमाम जमाना के बारे में कहा जाता है क्योंकि इनका इखलाक बहुत बेहतरीन था, इसलिए इमाम जमाना खुद आए और अपना दस्ते मुबारक इन्होंने उनके सीने पे रखा और उसके बाद ये बहरुल उलूम बने हैं। इनका नाम सैयद मेहदी था, बहरुल उलूम यानी इल्म का समंदर। ये लक़ब इमाम जमाना के इस करामत के बाद इनको मिला है, यानी इस पाए के अब जब सैयद मेहदी ने सुना कि खुद चल के तशरीफ ला रहे हैं, तो उस वक्त वो कोई किताब लिख रहे थे या कोई ऐसा काम कर रहे थे, नंगे पैर उठे और अपने घर से निकले हैं और गली के कोने में इनको लिया और अपने घर तशरीफ लेकर आए, यानी जल्दी से ही गए हैं नंगे पैर, न चप्पल पहनी। उसके बाद जब घर तशरीफ ले आए, उनको चाय वगैरह पिलाई, तो उन्होंने पूछा कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आया, आप मेरे दर्स पे तशरीफ लाए, मैं तब भी आपसे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि नहीं आगा, मैं नहीं पूछूंगा, आपकी मसरूफियत होगी, आप सैयदजादे हैं, मुझे मिलना चाहिए आपसे। कहते हैं मैं खुद बताना चाहूंगा कि दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि जिस शख्सियत ने पूरी एक किताब लिखी है इखलाक के हवाले से, क्या उस शख्स के अंदर इतना इखलास है कि वो अपनी अना को छोड़े और मुझसे मिलने आए। तो ऐसे होते हैं ये होते हैं गौहर इंसानियत। लेकिन हम अपनी अपनी अनाओं में, अपने अपने नफ्सों में जकड़े हुए हैं। अजीजान, आप सोचें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अबा अब्दुल्लाह हुसैन के फर्श अज़ा पर आए और उसकी रूह परवाज ना करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है, हमारी रूह यहाँ पर आती है, आप खुद महसूस करेंगे कि जब हमारी रूहें आती हैं हल्की हो जाती हैं, लेकिन जहां हम घर की तरफ जाते हैं, दूसरे माहौल पे जाते हैं, तो वही दोबारा जकड़न, वही एक खिंचाव होता है, क्योंकि हमारा नफ्स, हमारी अना उसको एक जाल में रखा हुआ है। इधर आते हैं तो वो उड़ना शुरू हो जाती है, तो बुलंद होना शुरू हो जाती है, अपने अल्लाह से एक अजीब इश्क, एक इमाम हुसैन से अजीब इश्क होता है। लेकिन जब हम घर पे जाते हैं तो हमारी रूहें, ये हमारी अना है कि जो हमें परवाज नहीं करने दे रही। हम नमाजों में ही सजदे में जाते हैं, अगर मोबाइल थोड़ा सा रिंग करता है तो फौरन ख्याल आता है पता नहीं किसकी फोन होगा। जैसे ही नमाज तमाम हुई, ताक़िबात का ख्याल होता नहीं है, फौरन से उठ के देखते हैं किसका है, चलो रिप्लाई कर देते हैं, फिर दूसरी नमाज पढ़ेंगे। हत्ता कि खुदा ने, आइम्मा ने हमें ताक़ीबात दी हैं। अजीजान, नमाज में कोशिश करें कि अपने आप को मनो अन खुदा के सामने हाजिर करें, भूल जाएं क्या बच्चे, क्या टेलीफोन। अपने बच्चों को भी दिखाएं कि बेटा मैं इस वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह के हुजूर जा रहा हूँ, इस वक्त मैं अपने रब से बातें कर रहा हूँ, इस वक्त आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर बच्चा करता है तो उसको निगलेक्ट करें। फिलहाल यही चीज, वो चीज जब देखेगा कि मेरी माँ, मेरा बाप अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज इन बच्चों में आ जाएगी। अमूमन लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। अभी मैंने एक दुआ पढ़वाई थी कि वालिदैन की बात माने बच्चे, वो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन को अल्लाह की बात मानते हुए नहीं देखा। कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगियों में अपने आप को इस दुनिया के लिए हमने वक्त कर दिया है, हत्ता कि हमें अपनी रूहों को, अपनी जिंदगी को अपने अल्लाह के लिए वक्त करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे हमारा ये बदन है, मैं ये मिसाल दूंगी, जब हमारे बदन पे कुछ बीमारियां आती हैं तो दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि मुख्तलिफ तरीके की दवाएं मौजूद हैं, दवाओं से भी काम नहीं होता। तो आप सब जानते हैं अभी कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी जिसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ी,
और ऐसी वैक्सीनेशन के पता नहीं कितने मुल्कों ने अलग अलग किस्मों की वैक्सीनेशन थी, ये तक पता किया जा रहा था कि भाई किस मुल्क की लगाएं, चाइना की लगाएं, रशिया की लगाएं, किधर की लगाएं। तो इसी तरह अजीजाना मोहतरम, जब हमारी रूह को कोई बीमारी लगती है तो उसके लिए भी तो हमें वैक्सीनेशन चाहिए। जब हम लोग जाते हैं ज़ियारात पे, जो ज़ियारत पे गए हैं इस पैंडेमिक के बाद, सब जानते हैं कि उनको वो कार्ड दिखाना पड़ा था कि भाई हम वैक्सीन लगा कर आए हैं, हमारे जिस्म को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, हम साफ करके आए हैं। तो जब हम उस जहान में जाएंगे और इजराइल हमसे पूछेगा मन इमामों का, कौन है तेरा इमाम, अपनी वैक्सीन लेकर आए हो, अपना वो कार्ड लेकर आए हो, तुम मुझे बताओ, तो उस वक्त हमारा वो कार्ड क्या होगा? वो हमारा गदीरी कार्ड होगा, वो हमारा इमामी कार्ड होगा, वो ये या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। यहाँ पे ये नारा हैदरी के या अली, ये हमारी वो वैक्सीनेशन का कार्ड है। ये वो हमारा मतलब इजराइल के सामने ये सारी जितनी भी चीजें हम नेक काम करते हैं, ये मजलिसों में आना, ये कुरान पढ़ना, ये दुआएं पढ़ना, यही वो चीज है कि जो हमारी रूहों को बेहतर बनाता है। अब अल्लाह ने दोबारा ये 2.5 महीने का वक्त खोल दिया है हमारे लिए। ये दरवाजा कभी हमारे लिए बंद होता ही नहीं है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी दरसगाह है कि जो आपके लिए मुसलसल खुली हुई है। कहीं आपको लगता है कि मेरी रूह दागदार हो रही है, खुदा मुझे हिम्मत दे, क्योंकि हम लड़ना चाहते हैं। ये एक जंग है, जो जंग जंगों में लड़ी जाती है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ये जंग असगर है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो जब इतनी बड़ी जंग के जो मैदान में लड़ी जा रही है वो जंग असगर है, तो जंग अकबर क्या है? यही जंग अकबर है कि जब आपने देखा कि मेरे नफ्स के अंदर मेरी अना आ रही है, मेरे नफ्स के अंदर बुराइयां आ रही हैं, गीबत है, हसद है, और जितनी भी हमारी बुराइयां हैं वो अगर मेरे नफ्स में आ रही हैं, उसके खिलाफ जिहाद करना वो बहुत मुश्किल काम है। जिसने जिहाद किया वो जान सकता है अपने आप को इस चीज पर करना कि नहीं, मुझे खालिस ही काम अल्लाह के लिए करना है, कोई कुछ भी कहता रहे मुझे, लेकिन मुझे ये काम करना है। इस चीज में जो हम जिहाद करते हैं वो खुदा देख रहा है। इसीलिए खुदा ने हमारे लिए ये दर रखा है कि आओ इनको देखो, इनके मानने वालों को देखो, जनाब फिजा को देखो, जनाब अकबर को देखो कि वो कैसे थे। उन्होंने विलायत की वैक्सीन लगाई हुई थी, जैसे हमारे माँ बाप, हमारी माओ ने हमें दूध पिलाया है या अली कहते हुए, वही आज अली का नाम की मोहब्बत जो हमारे रगों में है, कि अगर अली का नाम होता है, अली का नारा हम सुनते हैं, कहीं मौला अली के फजाइल सुनते हैं, तो एक अजीब सी लहर हमारे जिस्म में उठती है। लेकिन ये अज़ा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शियाने अली इसमें आए, हमें तो शिया बनाया गया है, लेकिन जो भी इस मरकज में आना चाहे उसको खुली दावत है, क्योंकि हम यहाँ तफरके की बातें नहीं करते, हम इस्लाम की बात करते हैं। और इस्लाम किस चीज का दीन है? अमन का दीन है। हम क्या बताते हैं कि आओ नमाज पढ़ो, आओ रोजा रखो, अपने अंदर से बुरी चीजें निकालो। इसमें क्या है? कोई भी ऐसा बंदा कि जो मुसलमान है, मुसलमान क्या हत्ता कि गैर मुस्लिम के लिए भी ये दरवाजा खुला हुआ है। अरबईन पे जो गया है वो जानता है कि वहाँ ईसाई भी आते हैं, वहां पर क्रिश्चियंस भी आते हैं, वहां हिंदू तक आता है, और सब आकर हुसैन हुसैन करते हैं, क्योंकि ये दीन ऐसा है। और जिस मेहदी का हम इंतजार कर रहे हैं, जो गैबत में है, उस मेहदी का सिर्फ हम इंतजार नहीं कर रहे, ये पूरी कायनात इंतजार कर रही है। उस मुंजिए मौऊद का जिक्र सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है, बल्कि अगर आप कितनी भी किताबें उठा लें, क्रिश्चियंस की उठा लें, आप जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी किताबें उठा लें, उसमें जरूर ये लिखा हुआ है कि कोई है कि जो आखिर में आएगा और इस दुनिया को अमन का गहवारा बना देगा। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो उनकी एक किताब है कि जो कि तौरात से निकाली गई है, दानियाल नाम की। मैंने एक आलम दीन की मजलिस में सुना था, वो कहते हैं कि किताब है दानियाल नाम की,
उसमें भी मेहदी का जिक्र है, सहीफे है पैगंबर के, उसमें भी मेहदी का जिक्र है। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो किताब है ज़बूर, उसको आजकल वो लोग मज़ामीर कहते हैं, उसमें भी जिक्र है। हत्ता कि इनके जिक्र के हवाले से कुरान में भी आयत है सूरह अंबिया में कि वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर, के ज़ुबूर में लिखा हुआ है कि हमारी इस जमीन का वारिस हमारे नेक बंदों में से होगा, यानी वो नेक बंदा जरूर आएगा जिसको हम मेहदी कहते हैं। अब हम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं, तो वाकईन हम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। अपने अंदर देखें, क्या वाकई हमारे अंदर गुर है? क्या वाकई हमारे अंदर वो 72 सहाबा है कि जो करबला में थे? आइए आज उस हबीब की बात करते हैं कि जो हुसैन का दोस्त था, कि जो तैयार था हर वक्त के बस हुसैन का जब हुक्म आया है तो खड़े हो गए। हत्ता कि रिवायात में है कि बहुत बुजुर्ग थे, जब वो करबला का सानहा हुआ है, कूफे में वो रह रहे थे, अपनी खानुम के साथ, अपनी जौजा के साथ खाना तनावुल कर रहे थे कि हुसैन का कासिद आया। जब खबर पता चली कि ये हुसैन की तरफ से नामा आया है तो चूमा है, अपनी आंखों में लगाया और कहा कि ये तो मेरे दोस्त हुसैन की तरफ से आया है। और हुसैन ने भी बहुत मुख्तसर सा खत लिखा है। उलमा बयान करते हैं कि रिवायत में लिखा कि ए हबीब, हमारे रसूल से क्या निस्बत है तुम ये जानते हो, हमें अशकिया ने अपने नरगे में घेर लिया है। ए हबीब, ये जान लो कि मेरे साथ ज़ैनब कुबरा भी मौजूद है, मेरे साथ सकीना भी मौजूद है। बस ये सुनना था कि हबीब तैयार हुए लेकिन अपनी जौजा की हालत देखना चाहते हैं। जौजा से कहते हैं कि मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे में वो ताकत नहीं कि मैं हुसैन की मदद कर सकूं। बस ये सुनना था कि उस खातून ने चादर ओढ़ी है और कहा कि हबीब, ये तुम जानो, तुम्हारा मौला जाने, लेकिन मैं अपनी ज़ैनब का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं इमाम हुसैन के लिए करबला जाऊंगी। अल्लाह रे, गुर्बत हुसैन की औरतें भी हुसैन पे तरस खा रही है। हबीब ने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं हुसैन को अकेला छोड़ दूं। बस अपने घोड़े के साथ अपने गुलाम को भेजा कि तुम मेरा इंतजार करो। मौला ने कहा, हबीब ने कहा कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं हुसैन तक जरूर जाऊंगा, अगर मुझे देर हो जाए तो ये मत समझना मैं नहीं आ रहा। बस हबीब ने तैयारी की है। जब पहुंचे हैं वहां तक, वो क्या देखते हैं कि गुलाम उस घोड़े से बातें कर रहा है। वो कहता है कि देखो, अगर मेरा आका ना आया तो मैं तेरी पुश्त पे सवार होके चला जाऊंगा। मैं हुसैन को जानता हूँ, मैं हुसैन को अकेला नहीं छोड़ सकता। बस हबीब ने जब ये सुना है तो कहा कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं मौला, मैं अपने मौला के पास ना जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। बस ये दोनों हैं जो गए हैं अपने हबीब के पास। और हबीब जो है वो जब पहुंचे हैं, करबला पहुंचे हैं, तो हुसैन ने गले से लगा लिया, कहा ये मेरा हबीब है। अरे हबीब वो शख्सियत है कि जब इमाम ने नमाज पढ़ी है तो वहां पे भी खड़े हुए थे। वहां पर एक और जख्मी सहाबी हुआ जो शहीद भी हुए हैं, उनका नाम बयान किया जाता है सईद इब्ने अब्दुल्ला। रिवायात में है कि जब सईद जमीन पर गिरे हैं हज़रात मोहतरम, इमाम ने सईद का सर अपने जानू पे रखा। सईद कहते हैं नहीं मौला, ये सकीना के सोने की जगह है, मैं उस जगह अपना सर नहीं रख सकता जहाँ पे सकीना का सर रखा जाता है। बस मौला ने फिर सर उठाया। मौला कहते हैं सईद अपनी वसीयतें करो। अरे सईद वसीयत करते हैं, इतने में मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। कहा सईद तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मैंने रसूल खुदा को देखा है। फिर अपनी वसीयत शुरू करते हैं। कहा अब फिर मुस्कुरा रहे हो? कहा मैंने अली को देखा
لعنة الله القوم الظالمين.